गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हर ट्यूसडे की तरह अभी आज भी हम चले आए हैं आपके साथ एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी लेके। और आई एम श्योर कि ये सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद जिसके मन में भी कुछ ऐसा सोच है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, ये सिर्फ बेकार लोगों का बिजनेस है, उनका ये नजरिया इस बिजनेस के बारे में जो है वो बदल जाएगा। आसिफ भाई, ये प्रोग्राम में बेसिकली बहुत Yeah. बंगालीज बांग्लादेश से भी रहता है। सो आई नो यू नो लिटिल बिट ऑफ बंगाली। Okay. तो क्या हम लोग बीच बीच में बांग्ला बोल सकते हैं? Yes, yes. ओके হ্যাঁ হ্যাঁ দারুণ হবে। ওকে হবে। ওকে, তো যারা ফ্রেন্ডসরা আছেন আর 1 মিনিটের মধ্যে অলরেডি আমি লাইভে চলে এসেছি এবং হোপফুলি আপনারা আপনাদের টিমের সবাইকে ইনফর্ম করুন যে আমাদের গেস্ট আমাদের সঙ্গে আজকে চলে এসছে এবং আজকে একটা ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন, ওয়ান্ডারফুল টক আজকে আমরা করতে চলেছি। সো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, যারা এখনো আপনাদের টিমে ইনফর্ম করেননি বা আপনারা এখনো পর্যন্ত যাদেরকে দেখছেন না, যারা লাইভে এসছেন, প্লিজ তাদেরকে ইনফর্ম করুন এবং আমরা চাই না আজকে এই ওয়ান্ডারফুল টক কেউ মিস করুক। তো ফ্রেন্ডস, আজকেও আমরা এসেছি এমন একজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে, এমন একজন অ্যাচিভার্সকে নিয়ে যার 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 বক্তব্য আমাকে মোটিভেট করেছিল। আমি নিজে মোটিভেটেড হয়েছিলাম এবং আমি ভেবেছিলাম আচ্ছা, ওনার মতো প্রোফাইলের লোক যদি এই বিজনেসটা করতে পারে, সো ওয়াই নট মি। সো আমি আপনাদেরকে এইটুকুনি বলবো যে যারা আজকে এই লাইভ দেখছেন তারা একটা দারুণ জিনিস এক্সপিরিয়েন্স, একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স আজকে আপনি এখানে পাবেন আজকের এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে। আমরা আমরা অনেকেই এই প্রোগ্রামের মধ্যে অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই এন্ট্রি নিয়েছেন। আমি সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের এই পাওয়ার টক সেশনে। আজকে পাওয়ার টক সেশনে আমাদের একজন যিনি গেস্ট আছেন, ওয়ান অফ দ্য টপ অ্যাচিভার অফ ভেস্টিজ, এবং শুধু তাই নয়, নর্থ ইস্টের আমরা রাজধানী বলি হচ্ছে আমাদের, মানে মেইন স্টেট বলি হচ্ছে আসামকে। আসাম থেকে উনি বিলং করেন, আসামের গুয়াহাটি থেকে বিলং করেন এবং সেখান থেকে আজকে লাইভে জুড়ছেন আমাদের সঙ্গে মিস্টার আসিফুর রহমান, डॉक्टर आसिफुर रहमान साहब। सो আমি আসিফ ভাই, आपको हर दिल से मतलब तहे दिल से मैं आपको स्वागत करता हूं, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি Thank you. আমাদের এই প্রোগ্রামে। একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আসিফুর সাহেব গুয়াহাটিতে থাকলেও, উনি একজন আসামিজ হলেও কিন্তু উনি বাংলা বলতে পারেন, খুব মিষ্টি বাংলা বলেন। তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের জন্য, আমি चाहबो যে आसिफ भाई बांग्लाते কথা বলুক। बट आसिफ भाई, अगर दिल की बात कहने के लिए अगर आपको लगता है कि आप चाहे कि आप बंगाली में नहीं, हिंदी में बात करेंगे, तो आप बंगाली में बात कर सकते हैं, ठीक है? सो मैं सबको रिक्वेस्ट Okay. करेंगे, प्लीज হ্যাঁ হ্যাঁ डोंट ज्वाइन जूम। आप ज्वाइन कर लो फेसबुक लाइव, जो जहाँ पे लाइव हो रहा है, क्योंकि इस जगह पे जूम पे सिर्फ मैं और आज हम लोगों का जो गेस्ट है मिस्टर आसिफुर रहमान, हम लोग रहेंगे और बातचीत करेंगे। और ये बातचीत के माध्यम से आसिफुर साहब का जितने सारे एक्सपीरियंस है, जो स्टोरी है, वो आपके सामने आएगा। অর্থাৎ আজকে আমাদের যিনি গেস্ট আছেন আসিফুর রহমান ভাইয়ের যা কিছু বক্তব্য আছে সেটার মাধ্যমেই আজকে আমরা জানবো যে ওনার ভেস্টিজের সফল হওয়ার কাহিনী। আসিফ ভাই, আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আপনাকে যে ইউ আর এ বিগ সেলিব্রিটি নাও। আজকে আমি যখন গেছিলাম গুয়াহাটিতে, সো নেটো মার্কেটিং করে আর ডক্টর আসিফুর রহমানকে জানে না এরকম লোক কিন্তু নেই, নর্থ ইস্টে নেই। ভেস্টিজে ইউ আর একটা উজ্জ্বল তারকা আপনি। তো আমি জানতে চাইবো যে আমরা যে কোনো সেলিব্রিটি তাদের লাইফস্টাইল সম্বন্ধে জানতে চাই, ফ্যামিলি সম্বন্ধে জানতে চাই, ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে জানতে চাই। তো যদি আপনি একটু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে খুলে বলেন, আপনার ফ্যামিলি, আপনার ছোটবেলা, এসব নিয়ে যদি কিছু বলেন আমাকে। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নিই, আর আমার বাবাও ছিল ডক্টর। তো ওই টাইমে ছোট ছোট জায়গায়
মানে ছোট ছোট শহরগুলো ছিল, তো ওইখানে পোস্টিং ছিল ওনার। তো তার আমি এই ছোট জায়গায় থেকে আমরা জীবনটা হয়। আর মেট্রিকের পর আমি টাউনে অ্যাকচুয়ালি সিটিতে আসলাম, এই জোরহাট একটা ছোট সিটি। তো ওইখানে আমি লেখাপড়া কলেজ লাইফে ওইখানে আমি করলাম। তারপর ভালোই চলছিল, যে ডাক্তার বাবা, তো স্যালারি ভালোই ছিল, ইনফ্লেশনের মাধ্যমে ওইটাই ছিল, যে প্রবলেম হচ্ছিল না। কিন্তু জি আমি চাই ওই টাইমে আমি কিছু পেলাম না ওইখানে, ওই টাইমে। কেন? অ্যাজ এ ডক্টর ওই জায়গা থেকে বাইরের পয়সা কিছু ছিল না, আর ওই টাইমে নার্সিং হোমও তখন তেমন ছিল না। তো প্রবলেম আমার কিছু হচ্ছিল না। যখন আমি কলকাতায় আমি মেডিকেলে আমি গেলাম পড়বার জন্য, তো আসার পর কমপ্লিট হওয়ার পর আমি জোরহাটে আবার ফিরে আসলাম। আর ওইখানে আমি প্র্যাকটিস করার পর তো আমি একটা নার্সিং হোম খুললাম ওইখানে 2003। আর ওই টাইমে তো আমার বাবা এক্সপায়ার হয়ে গেল। তো এক্সপায়ার হওয়ার পর আমার ভীষণ মানে যেটা আমার ছিল একটা বাবার যেটা আশীর্বাদ ছিল ওইটা তো শেষ হয়ে গেছে। তো তারপর আমি হসপিটালে যতগুলো পয়সা আমরা ছিল তো ওইখানে লাগালাম। পর হসপিটালের জন্য 15 লাখ রুপিস আমরা ব্যাংকের থেকে লোন নিলাম, আর প্রাইভেট থেকে 3 লক্ষ টাকা আবার লোন এলো, 10% লোনে হসপিটাল চালাবার জন্য। তো ওই দিন এপ্রিল 2003 একটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেল আমার জীবনে। তো ওইটা হলো কি যে 2003 এপ্রিল 14 আমাকে এক্স-মিলিটারিজ মতলব এই যে টেরোরিস্ট ওই টাইমে আসামে ছিল, আচ্ছা, তো আমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। ও গড, আচ্ছা। তো 2 দিন আমি ওইখানে ছিলাম ওনার এতে। আমি তখন বুঝতে পারছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি। আমি পুলিশের কাছে আর্মির থেকে আমি তখন AK-47 গ্রেনেড এগুলো দেখছিলাম, কিন্তু যখন আমার চোখের আগে ওই টেবিলের মধ্যে ওইগুলা ছিল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ব্যাপারটা কিছু আলাদা। তো উনি আমাকে বললো যে 15 লাখ রুপিস আপনাকে দিতে হবে র্যানসম। তো আমি বললাম যে আমি তো হসপিটাল খুলছি লোনে, প্রাইভেট লোনে ছিল, আর 6 মাস হয়েছে, তো 6 মাসের মধ্যে আমার তো কিছু নেই। আমার বলে সব হসপিটালে দেই, তো আপনি কেন দেবেন না? তো এর মধ্যে 2 দিনের এই ব্যাপারে সন্ধ্যাবেলায় আমার কি হলো, অ্যাজ এ স্মল অ্যাটাক হয়ে গেল, আর আমি পড়ে গেলাম ওইখানে। আর আমি যখন আঁখ খুললাম তখন আমি হসপিটালে, আর আমার এই বাঁ সাইডটা আমার প্যারালাইসিস হয়ে গেছিল। আচ্ছা। তো তখন যখন আমি বললাম যে আমি এখানে কেমন, বলে আপনাকে রাস্তার কিনারে আপনাকে কেউ আপনার ফেলায় গিয়েছিলেন, তো এই জন্য কেউ আপনাকে দেখে তো হসপিটালে পুলিশে নিয়ে আসলো। তো আমি ওই টাইমে আমাকে রেফার করলো গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে। তো এখানে আমি 3 মাস ছিলাম। তো তারপর তো আমার হসপিটাল ছিল, তো যখন আমার 29টা বেড ছিল এখানে ওই টাইমে, তো যতগুলো পেশেন্ট ছিল তো শিফট করে দিলাম আলাদা হসপিটালে, আর আমার হসপিটাল লক ছিল। তো যখন আমি রিটার্ন হলাম বাড়িতে, তো হসপিটাল লক, আর যত পয়সা মানে ছিল তো ওই হসপিটালের মধ্যে বিলে সব খতম হয়ে গিয়েছিল। তো 3 মাস পর ব্যাংক থেকে
জবাব আসতে লাগলো যে আপনার লোনটা পেমেন্ট করতে লাগবে এখন, যে ইন্টারেস্টটা বেশি হয়ে গেছে। প্রাইভেট লোন যে ছিল 3 লক্ষ, ওটা আমার আনাদার 1 লক্ষ টাকা বেশি হয়ে গেল। 15, 16, 17, 18 লাখ, 19 মতলব 20 লাখ পর্যন্ত আমার লোন হয়ে গেল। তো আমি কি করব? তো ওই টাইমে আমার ভাই একটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ ছিল তখন 2003-তে অ্যামওয়ে কর্পোরেশনে। তো উনি বলল, তুই তো কিছু করতে পারবেন না এখন, তুই এই বিজনেসে জয়েন হয়ে যাও, আর তোমার যেগুলো মানুষ তুমি জানা পয়সানে মানে জানাশোনা আছে, তো ওইগুলোকে তুমি আমার সঙ্গে করে দাও। তো আমি বললাম ঠিক আছে। প্রথমে তো আমি ওইগুলো মানে করতে পারলাম না, যে কি করে আমি মানুষকে বলবো করতে। আমি প্রথমে এগুলো আমি ভাবতে পারছিলাম না যে এরকম একটা বিজনেস করতে পারি। তো এই যে আমি জয়েন হই, আমি কিছু শিখলাম ওইখান থেকে বাড়িতে। আর ওই টাইমে আমার একটা প্রবলেম হয়ে গেল, যে প্রবলেমটা হলো কি, যে ব্যাংক আর প্রাইভেট ফাইন্যান্সার যেগুলো ছিল, তো আমার উপর প্রেসার বেশি হয়ে গেল। তারপর আমি কি করলাম, যে আমার যেটা বাড়ি ছিল নিজের, আমার বাবার একটাই বাড়ি ছিল, তো 2 পার্ট করে, তো আমার পার্টটা আমি বিক্রি করে দিলাম। আর বিক্রি করে যেটা পয়সা ছিল, আমি ব্যাংকে 20 লক্ষ টাকা আর প্রাইভেট ফাইন্যান্সারে ওই পুরা পয়সাটা আমি দিয়ে দিলাম। তারপর আমি যোরহাট থেকে, ওইখানে তো আর থাকতে পারবো না, কিছু আমার বাড়ি আছে না গাড়ি আছে, সবকিছু চলে গেল, ভাল করে হাঁটতে পারলাম না। তো কি করব, গুয়াহাটিতে শিফট হয়ে 2-1টা কাজ করলাম এখানে, তো চিনা জানা ছিল না কেউ। তো তারপর আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর অ্যামওয়ে কর্পোরেশনে আমি একটা পজিশনে চলে গেলাম, কিন্তু পয়সা ওইখানে ছিল না। কাজ করতাম, আসবো আসবো বলে ভাবছিলাম, কিন্তু আসেনি কিছু। তো এই যে ব্যাপারটা হলো, তো তারপর আমি খুঁজে পেলাম যে আমাকে একটা ফোন এসলো দিল্লি থেকে। ওই ফোনে একজন মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে আমাকে একটা ম্যাডাম আমাকে ফোন করছিল, মিসেস অপর্ণা দেব। তো ওই ফোনটা উনি একজন মানুষের কাছে দিয়ে দিল, যে উনি বললো যে তুমি বিজনেস করতেছো, তো ভালো একটা বিজনেস দেখবার জন্য তুমি দিল্লি আসতে লাগে। তো আমি বললাম যে আমার কাছে কিন্তু পয়সা নেই, আমি একদম ভীষণ প্রবলেমে ছিলাম। কেন? তো আমি কাজ করতে পারছিলাম না, তো এখানে নেটওয়ার্ক থেকে কিছু আসতেছিল না, তো আমি একদম জিরো হয়ে গেলাম। না আমার বাড়ি আছে, না কিছু আছে, ফ্যামিলি মেম্বার্স গুলো আমাকে দেখতে না, কেন আমার হাতে কিছু ছিল না। তো এর জন্য আমি ওই টাইমে দিল্লি থেকে একটা ফোন আসলো, আর একজন ভদ্র মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ডক্টর আশিকুর রহমান, তো আপনি লাইফে যদি সাকসেস হতে চান, তাহলে ইউ কাম টু দিল্লি। আর উনার ভয়েসটা শোনার পর, যে আমার হার্টের কিছু একটা এমন রিয়াকশন হলো, যে আমি না বলতে পারলাম না। আর উনি হলেন আমার এমডি স্যার, মিস্টার গৌতম বালি। আর বালি স্যারের ওই ভয়েসটার জন্য আমি দিল্লি গেলাম। আর দিল্লি যাওয়ার পর উনি যত প্ল্যান দেখালেন আমাকে, যে অ্যাকুমুলেট প্ল্যানটা, আর প্রোডাক্টের যেটা নলেজ আমাকে দিল, ওইটা হলো ফ্ল্যাক্স অয়েলের, যে ওমেগা 3 এন্ড ওমেগা 6। যে ওমেগা 3 এত তাড়াতাড়ি কাজ করে, যেটা আমার আর্টারি ব্লকেজ গুলো খুলে দেয়। তো আমি দুসরা কোম্পানিতেও ওইটা আমি দেখছিলাম ওমেগা 3, এন্ড এখানে আমি ডেমো দেখলাম। তো দেখার পর যে আমি ভাবলাম যে ডেমোটা এত তাড়াতাড়ি কাজ করতেছে, আর প্ল্যানটাও এত তাড়াতাড়ি কাজ করবে কেন? অ্যাকুমুলেশন, প্রত্যেকজন মানুষ এখানে সাকসেস হবেই। যে যারা এই কাজটা করবে উনি সাকসেস হবে। তো আমি ভাবলাম যে প্রোডাক্ট ইজ গুড, সিস্টেম ইজ গুড, এন্ড প্রাইস ইজ গুড। প্রিভিয়াস কোম্পানিতে কি ছিল, যে একটা ওমেগা 3 বটল মিনিমাম 1500 ছিল,
আর এখানে 475 ছিল ওই টাইমে। তো আমি ভাবলাম এত ডিফারেন্স, তো সব মানুষ তো এইগুলো প্রোডাক্ট নিবে। তো আমি তখনই ওনাকে আমি বললাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এই কাজটা আমি করতে পারবো। তো বললে ঠিক আছে। তো ওই 2010 জুন 7 জুন আমি সাইন আপ করছিলাম। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ আসিফুর ভাই। এখানে আমি এখানে আপনাকে একটু আটকাবো, সেটা হচ্ছে যে অনেকেই যারা জয়েন করেছেন আমাদের সঙ্গে একটু লেটে, আমি একটু ব্রিফ করতে চাই। ডক্টর আসিফুর রহমানের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমার ছিল ওনার কাছে যে ওনার একটু চাইল্ডহুড স্টোরি, কিন্তু এই স্টোরিটা আজকে যেটা শুনলাম আসিফ ভাই, এই কাহিনী কিন্তু আমি আগেও জানতাম না, আজকে আপনার থেকে প্রথম শুনলাম যে আসিফুর রহমান উনি জন্মেছেন একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে। ওনার বাবাও একজন ডক্টর ছিলেন এবং ওনারা বিভিন্ন জায়গায়, যেহেতু উনি গভর্নমেন্ট পোস্টেড ছিলেন, বিভিন্ন লোকেশনে ওনারা টাইম কাটিয়েছেন। তারপর সেটেল হয়েছেন জোরহাট বলে একটা ছোট্ট এলাকাতে, আসামের জোরহাট ইজ এ যদিও এখন একটা বড় বিজনেস প্লেস। এবং একটা সময় আসিফুর সাহেব একটা হসপিটাল, তাদের 29টা বেডের হসপিটাল রান করার জন্য ওনাকে প্রায় 15+ হচ্ছে আরো 3 লাখ প্রাইভেট লোন নিয়ে, ব্যাংক লোন প্লাস প্রাইভেট লোন নিয়ে তাকে করতে হয়েছিল ইনভেস্টমেন্ট। কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সে সময় এটা, আসিফ ভাই ये जो आपका ये एक्सट्रीमिस्टরা যখন আপনাকে কিডন্যাপ করে সেটা কোন সাল হবে? 2013 sorry 2003 April 2003 April 14। ওকে, তো সেই সময় এক্সট্রিমিস্টদের একটু প্রবলেম ছিল আসামে অনেক বেশি করে, এবং সে সময় যেহেতু ওনার বড় হসপিটাল ছিল, নার্সিং হোম ছিল, সেই কারণে ওনাকে তুলে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে ওনার থেকে 15 লাখ টাকা ডিমান্ড করা হয়। কিন্তু যেহেতু উনি তখন ব্যাংক লোন নিয়ে নিজেই সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে, প্রাইভেট লোন নিয়ে নিজের নার্সিং হোম করেছিলেন, ওনার পক্ষে টাকা পয়সা দেওয়া সম্ভব ছিল না। এবং সেই সময় ওনার একটা অ্যাটাক হয় এবং ওনার একটু প্যারালাইজড কাইন্ড অফ সে সময় হয়ে যায় এবং উনি নিজে ওখানে পড়ে যান। তারপর যখন উনি চোখ খোলেন, উনি নিজেকে পান একটা হসপিটালে। পরে জানতে পারেন ওনাকে কোনো একটা রাস্তার ধারে কোনো ফেলে দেওয়া গিয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকে ওনাকে নিয়ে এসছে, এবং এইভাবেই সেকেন্ড লাইফ স্টার্ট হয়। এবং বুঝতেই পাচ্ছেন ওনার প্রায় 3 মাস উনি হসপিটালে ছিলেন, যার ফলে ওনার নার্সিং হোমের সমস্ত পেশেন্ট অন্য হসপিটালে শিফট করা হয় এবং ওনার সেই বিজনেসটা এক প্রকার বন্ধই হয়ে যায়। এবং উনি তারপর ওখান থেকে চলে আসেন গুয়াহাটি শহরে, অর্থাৎ আসামের রাজধানীতে, যেখানে ওনার সঙ্গে সেরকম পরিচিত কেউ ছিল না। এবং পরিচিত কোনো একজন বন্ধুর মাধ্যমে, ফ্যামিলির কারো মাধ্যমে উনি ইন্ট্রোডিউসড হন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, এবং উনি প্রথম নেটওয়ার্কিংটা স্টার্ট করেন উইথ অ্যামওয়ে কর্পোরেশন। এবং এইভাবে কাজ করতে করতে একটা সার্টেন লেভেলে ওখানে পৌঁছানোর পর উনি ফোন পান দিল্লি থেকে ওনার আপলাইনের, এবং ফোন পান আমাদের এমডি স্যারের, মিস্টার গৌতম বালি স্যারের। এবং সেখানে ওনার যখন উনি দেখেন আমাদের প্রোডাক্টসের, যেহেতু উনি নিজে একজন ডক্টর, উনি ওমেগা 3 এবং আমাদের আমার মনে হয় ফ্লেক্স অয়েলের ডেমনস্ট্রেশন দেখেছেন। এবং উনি যখন আমাদের প্ল্যান, অ্যাকিউমুলেটিভ প্ল্যান, অন্যান্য প্ল্যানে যেরকম মাসের শেষে 0.0 হয়ে যায়, ভেস্টিজে সেটা অ্যাকিউমুলেট হয়ে বাড়তে থাকে, এই প্ল্যানটা উনি দেখে উনি করতে পারেন যে যে না, এই প্ল্যান তো দারুণ কাজ করবে, যেহেতু অ্যাকুমুলেটিভ প্ল্যান। এবং প্রোডাক্টসের দাম উনি যে কোম্পানি করতেন সেখান থেকে প্রায় 3 গুণেরও বেশি কম। তো সুতরাং এত কম দামের প্রোডাক্টস নিয়ে এবং এত ভালো প্ল্যান নিয়ে কাজ করলে অনেক বেশি লোকের মধ্যে বিজনেসটা ছড়ানো যাবে, সেইভাবেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে স্টার্ট করেন হচ্ছেন ভেস্টিজ। আসিফ ভাই আমি ঠিক বললাম তো? হ্যাঁ 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 একদম। তো আসিফ ভাই, হ্যাঁ, এবার আপনি ভেস্টিজ শুরু করলেন। এবার ভেস্টিজ শুরু করার পর আপনার সাকসেস কিভাবে আসে, কি কি অবস্টেকলস আপনার সামনে এসছে, সেগুলো যদি একটু আমাদেরকে বলেন। আমি একটা কথাই আমি বললাম যে ওই প্রিভিয়াস কোম্পানির থেকে আমার একটা আইডিয়া হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি যে হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি। তো ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রির আমি ওইখানে আমি ভালো একটা ট্রেনিং নিয়েছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমি কোর ডিস্ট্রিবিউটর ছিলাম ওইখানে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওইখানে কি ছিল যে প্ল্যানটা যেটা প্ল্যান ওইটাই মানে ইনকামের যেটা ওইটা এত বড় ছিল না। কাজ করতাম কিন্তু পয়সা ছিল না। তো এর জন্য আমি ভেস্টিজে যখন আসলাম, তো তার আমি ফার্স্ট চেক, আমার যখন ফার্স্ট চেকটা আমার ভাউচার ছিল 126 টাকা, 126।
আর সবাই বললেন যে তুমি এটা কি কাজ করছো, যে আমি বললাম যদি আমি এই কাজটা আমি যেরকম করতেছি 126 টাকা ইনকাম হয়েছে, তো আমি যদি কাজটা ভালো করে করি তাহলে 1,26,000 টাকা আসবে ওই কাজে। তো আমার কনফিডেন্স ছিল, আর আমি কাজ করতে গেলাম 2 মাসে 246 and 6 মান্থে ওই টাইমে 2000 জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর নভেম্বরের চেক আমার 1 লক্ষ টাকা অ্যাজ এ ক্রাউন ডাইরেক্টর। 6 মাসে আমি ক্রাউন ডাইরেক্টর ব্রেকিং করছিলাম। আর ওই টাইমে কিছু অফিস ছিল না আসামে, আমি বাড়ি গিয়ে গিয়ে প্রোডাক্ট দিয়েছিলাম। না আমার কাছে গাড়ি ছিল না কিছু, একটা ছোট বাইক ছিল, আর ও বাইকে দিয়ে তো আমি প্রত্যেক জায়গায় আমি তো গিয়ে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিয়েছিলাম। আর আমার রিকগনিশন অ্যাজ এ ক্রাউন ডাইরেক্টর, নেক্সট ইয়ার আই এম এ ইউনিভার্সাল ক্রাউন ডাইরেক্টর, দেন নেক্সট ইয়ার আই এম এ ডাবল ক্রাউন, এরকম করে নাও আই এম এ ডাবল ইউনিভার্সাল ক্রাউন ডাইরেক্টর ভ্যাস্টিজ থেকে। আর সবকিছু আই হ্যাভ অ্যাচিভ ইন মাই লাইফ। আসিফ ভাই, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার শুরুর দিকে কি কি বাধা এসেছিল? কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে বিজনেসটা করতে গিয়ে? কোনো নেগেটিভিটি, বা ধরুন আপনি একজন বাই প্রফেশন একজন ডক্টর হওয়ার সত্ত্বেও। হ্যাঁ, বাধা মানে কি আছে যে সবাই বলছিলেন যে তুমি ডক্টর ছেড়ে এটা কি কেন করতেছো, যে তুমি তো যে ভালো হওয়ার পর তুমি। আমি বললাম যে আমি ওই কাজটা করে আমি টেরোরিস্ট থেকে আমি ওই জায়গায় আমি পৌঁছে গেছিলাম, আমি তো রিটার্ন হলাম, ভাগ্যটা আমার ভালো ছিল যে আর আমি ওই কাজে আমি ধ্যান নিয়ে দিই, আমি এখানে ইয়ে করছিলাম যে ভালো করে আমি এই কাজটাই মানে যেটা আমার ড্রিম, অ্যাকচুয়ালি আমার ড্রিম ছিল। ওই ড্রিমে আমার কাজে যদি আমি ডাক্তারি করতাম তাহলে আমার এই ড্রিমটা ফুলফিল কখনো হবে না। আমি বুঝতে পারছিলাম কেন ইনফ্লুয়েশন থেকে আমার ইনকামটা ছোট। তো ইনফ্লুয়েশন থেকে যদি আমি ইনকামটা বাড়াবার জন্য আমি চাই তাহলে আমাকে ডাইরেক্ট সেলিং এ আসতেই হবে, এটা আমি বুঝে পেয়েছিলাম। আর এই জন্য না, ওইটাই আমার প্রবলেম ছিল। কিন্তু আমি ওই জায়গায় বাসে প্রোডাক্ট পাঠাতাম, আমি নিজে গিয়ে দিতাম। তারপরে আস্তে আস্তে সব জায়গায় তো এখন তো অফিস হয়ে গেল। আর আজকের দিনে তো কিছুর কারো প্রবলেমই হয় না যে বিজনেস করবার না করার কোনো মানেই নেই, এইটাই তো। বাকি তো প্রবলেম এমন কিছু ছিল না, এমন কিছু প্রবলেম ছিল না, এবং আপনি খুব পজিটিভ ছিলেন। আপনি অলরেডি ডিরেক্ট সেলিং এর সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস ছিলেন। আপনার 2003 সাল থেকে 2010 সাল অব্দি একটা কোম্পানিতে আপনি কাজ করেছেন দীর্ঘ সময়। তো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর এডুকেশনও আপনার কাছে ছিল, যার ফলে এই বিজনেসটা তো ড্রাইভ করে এডুকেশনে। যেহেতু আপনি এই বিজনেসের 5-7 বছর অলরেডি একটা এডুকেশন সিস্টেমের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছেন, তাই এই বিজনেসটা আপনি সহজে গ্রো করতে পেরেছেন, আমরা বুঝতেই পারছি। বাট আমি যখন দেখেছি আমি আপনার বাসায় গেছি, আমি গুয়াহাটিতে ডিনারও করেছি আমরা একসাথে ভাবির হাতে। সো আমি দেখেছি অলওয়েজ ভাবি ওয়াজ সো কোঅপারেটিভ, এবং উনিও আপনার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছে। হ্যাঁ, ভাবির এত অ্যাক্টিভ এনার্জি। ইভেন আমি যেদিন আপনার বাড়িতে গেলাম সেদিন আমি দেখছিলাম ওনার একজন লেডি ডাউনলাইনকে প্রোডাক্টস বোঝাচ্ছিলেন এবং তাকে প্রোডাক্টস দিচ্ছিলেন, একজন গভর্নমেন্ট জব করা একজন ভদ্র মহিলা। সো আপনার ফ্যামিলি সাপোর্টটা কিরকম ছিল যখন আপনি বিজনেসে এসেছেন? ভাবির সাপোর্ট কিভাবে পেয়েছেন এবং কিভাবে আপনি গ্রো করেছেন? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্যামিলিতে কেন, আমার ভাইও উনিও অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ার, উনিও কাজ না করে ডাইরেক্ট সেলিং এর এখনো উনি এমওএ কর্পোরেশনের হাই পোস্টে আছে। আর আমরা দুইজনই ভাই, আমি আর আমার ছোট ভাই, উনি ওই পোস্টে বড় পোস্টে আছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ, আর আমিও ভ্যাস্টিজে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ হাইয়েস্ট পোস্টে আছি ইন নর্থ ইস্ট। তো দুইজনে, আর আমার মা হলো পজিটিভ, কারণ দুইজনই যদি নেটওয়ার্কার হয় তো মা কি হবে। তো আমার মা আর আমার উনিও পজিটিভ, আর আমার অ্যাকচুয়ালি যেন হার্ট মাই লাইফ
মাই ওয়াইফ। ওকে, তো প্রথমে উনি কিছু প্রবলেম ছিল অ্যাকচুয়ালি, যে তুমি এই কাজটা করো, আমাকে কিন্তু বলবেন না, আমি কিছু করবেন না। अच्छा কিন্তু যখন ওই স্টেজে যখন গেলেন, যাওয়ার পর উনি চেঞ্জ হয়ে গেল। আর এখন উনি আমাকে যথেষ্ট সাপোর্ট করছিল ওই টাইমে, যখন বাকি আমি ক্রাউন ডাইরেক্টরের পর উনি আমার বিজনেসে ইয়ে নিল। আর আজকে তো উনি বেশি করে আমার থেকে, উনি বেশি ইয়ে করে। তো আমি 2 মিনিটের জন্য ওনাকে দেই, আপনি জাস্ট ইয়ে করেন। ओके भाभी नमस्ते। गुड मॉर्निंग हीरक जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। आज जितने Good हम morning। भैया से जितना भी बात करें, आप लोगों की बिजनेस के बारे में, आप लोगों के अचीवमेंट के बारे में अगर आपसे बात ना करें तो बेसिकली वो अधूरा हो जाता है ना। तो ये मैं पूछ ही रहा था आसिफ भाई को, क्योंकि मैंने आपको देखा है, यू आर वेरी एक्टिव। सारे मिलेनियर्स बूट कैंप में आपको हम देखते हैं, फॉरेन ट्रिप्स में हम लोग एक साथ टाइम बिताए, बहुत एक्टिवली आप काम करते हैं। और जब आपके घर में भी हमने गया था डिनर पे, हम देख रहा था कि आप आपकी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनको प्रोडक्ट समझा रहे थे। वो ऑफिस से आके, गवर्नमेंट जॉब करती थी, वो आके ऑफिस से आपसे आप उनको समझा रहे हैं न्यू ज्वाइनिंग। सो आज जो इतना एक्टिव होके आप काम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं भैया को, ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक जो बंदा जो हस्बैंड बिजनेस करता है या वाइफ बिजनेस करता है, उसमें कितना पावर जुट जाता है अगर दोनों साथ में काम करें तो? इसके बारे में अगर आप कुछ कहे तो। बाप रे, मतलब जो ऐसे अगर हस्बैंड अकेले करे या वाइफ अकेले करे तो 50% होता है, लेकिन दोनों अगर करे तो 50-50 पूरा 100 हो जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं, पूरा निसंदेह सक्सेस तो मिलना ही है सबको। तो एक्चुअली बिगिनिंग में थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मास्टर्स के बाद मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया था, तो जॉब कर रही थी, बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन बहुत ज्यादा ड्रीमर होने के कारण कहीं ना कहीं मैं भी ढूंढ रही थी कुछ ऐसा मिले जहां मुझे बहुत जल्दी मेरा ड्रीम फुलफिल होने के लिए मौका मिले। तो पहले पहले बहुत इसको थोड़ा पिंच करती थी मैं भी, क्योंकि मैं डॉक्टर समझ के इनके साथ मेरा शादी हो गई थी, और मैं कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटर थी, लॉ कॉलेज की। तो शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम थी, बाद में जब देखा इसने जब क्राउनशिप अचीव की, तब क्राउन क्या मुझे पता भी नहीं थी बिजनेस में। स्टेज में इनको पूरा लोग जब उठा के ऊपर में लेके गई थी, और बाली सर थी, दीपक सर थी, तो देखा जितना इसको रेस्पेक्ट दे रही थी। एक्चुअली मैं भी वही ढूंढ रही थी, लोगों के बीच में रहना, लोगों को हेल्प करना, और जो सपने थी बचपन में, जो बुने थी सपने, तो ये सब मैंने उधर जाके देखा। लोग मतलब एक बात मुझे इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही थी और दिल को छू गई थी, वो बात थी कोई किसी दूसरा का जो सक्सेस था, इस सक्सेस को लेके कोई दूसरा हाथ तालियां दे रही थी। मतलब किसी दूसरों की सक्सेस के लिए कोई दूसरा इतना खुश हो रही थी, सिर्फ मैंने इस प्लेटफॉर्म में ही देखा। तो इसके बाद से मैं पूरा दिल से, दिमाग से और ब्लड से जुड़ गई बिजनेस में। ग्रेट भाभी। क्या होता है ना, हर कोई किसी के पास जो नौकरी करता है, जैसे आप लॉ को आप मास्टर्स की हुई है, आपका शादी इसलिए हुआ था बिकॉज ही वाज अ डॉक्टर, और आपको ये दुख लगना ये मुश्किल, मतलब ये गलत भी नहीं है। मैंने एक शादी किया, डॉक्टरी ना करके क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो जब तक ये किसी को दिमाग में समझ में नहीं आता इस बिजनेस में जो ड्रीम पूरा हो सकता है, शायद वो दूसरे किसी प्रोफेशन में करना मुश्किल है या बहुत टाइम लग सकता है उसमें, है ना। बट जो मिनिमम टाइम में यहाँ पे अचीव हो सकता है, दैट इज अमेजिंग। और एज ए आप नौकरी कर रहे थे एक लॉ कॉलेज में, आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो वहां पे आपका तो बहुत अच्छा नौकरी है। जो सर्विस क्लास लोग है, ऐसा सर्विस मिलना भी उनके लिए बहुत, मतलब वो शुक्रगुजार होता है ऊपर वाले का कि ऐसा एक नौकरी मिल गया। बट फिर भी आप खुश नहीं थे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ड्रीम था। और आप अभी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अपने अपने प्रोफेशन छोड़ के, आप आपका अपना कॉलेज का नौकरी, भैया अपना हॉस्पिटल छोड़ के, ये जो दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, और उसको आपको जो अचीवमेंट मिला है,
आप एंजॉय कर रहे हैं। आपको लगता है क्या जो नौकरी आप करते थे वहां से आपको साल में, जैसे वेस्टिज में कितना फॉरेन ट्रिप हो गया आप लोगों का 10 साल में? हम लोग का तो अभी, मैं ऐसा नाम बोलते बोलते ऐसे मुझे उंगली में हाथ डालना पड़ता है, क्योंकि अभी नंबर तक बताइए। शायद हम लोग का 18 ऐसा कंट्री, 18 कंट्री हो 18 गया है शायद। 18 कंट्री आप घूम के 18, आए क्योंकि हैं। आप मेरे को ऑस्ट्रेलिया आप से, बोलो, ऑस्ट्रेलिया से लेके मतलब जितने सारे ओवरसीज है, एशिया एंड एशिया के बाहर सारे ट्रिप्स आप करके आए हैं। आप बताइए जहां पे आप नौकरी कर रहे थे, क्या 10 साल में ये सब मिलना, ये फॉरेन ट्रिप मिलना पॉसिबल होता? हीरोक जी मैं ये बात बताऊं, मुझे छुट्टियां मिलना इतना मुश्किल थी। मुझे एग्जाम की टाइम में मुझे ओवर ड्यूटी भी करना पड़ रही थी। और एक्चुअली मैं इंडिया की सारों जो तरफ असम का भी जो है वो मैं नहीं देखा था। और सेकेंडली मैं ट्रेन में भी सफर नहीं कर पाया था। मैं ट्रेन में भी नहीं कभी नहीं उठी थी। लेकिन जब मैं वेस्टिज में आई तब तो लोग अभी बोलते हैं कि शबनम और आसिफ तो अभी आसमान में ही रहते हैं। मेरा जो फ्रेंड है, फ्रेंड लोग बोलते हैं मुझे, अरे शबनम अभी ब्रेकफास्ट तुमने ऑस्ट्रेलिया में किया तो डिनर क्या लंदन में करोगी? तो मुझे बहुत दिल में प्राउड भी होता है, और मजाक को तो पता ही चलता है। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ड्रीम में जब मैं एक्चुअली मेरे घर में मेरे पापा का एक लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में जितना बुक थी मैं सब कुछ पढ़ डाला, जाने अनजाने में इसका कुछ समझ में आए या ना आए। तब मैं बहुत देशों की जो पिक्चर थी वो मैंने काट के मैंने एल्बम बनाई थी। तो इस जगह में पूरा दुनिया का जितना ब्यूटीफुल पिक्चर थी वो मैंने लगाया। तो बाद में जब इसमें मौका मिला तो लंदन, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, आपका जर्मनी, मलेशिया, रसिया, आप लोग तो थे बहुत जगह में। तो अभी इस तरह से घूम के आया। और मेरे घर में भी एक्चुअली 4 व्हीलर पहले नहीं थी, बड़ा भैया ने ली थी एक, लेकिन वो सिर्फ गाड़ी बोलने से गाड़ी है। लेकिन जो मर्सिडीज का ड्रीम थी मुझे बहुत पहले, यूनिवर्सिटी में जब मैंने स्टडी कर रही थी तो हम जो हाईवे थी, हाईवे में देखा था हम लोगों ने मर्सिडीज ऐसे लग्जरियस कार। तो भी मैंने सोचा ये एक्चुअली मर्सिडीज कार होती क्या है। तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वेस्टिज में आने के बाद पता चला ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ये तो कॉमन सी चीज हो गई है, आजकल सबके पास में है। और जैसे जो घर बनाने के लिए लोगों को इतना टाइम लगता है, क्योंकि मैं दूसरों के बारे में नहीं बताती हूँ। मेरे पिताजी भी प्रिंसिपल है, मेरा बड़ा भैया वाइस प्रिंसिपल है सेम हायर सेकेंडरी में। तो अभी मेरा बड़ा भाई ने एक अच्छा सा घर बनाया अभी, लेकिन मैंने इधर कितना जल्दी, नॉट ओनली मी, हम लोगों का बहुत ऐसा टीम मेंबर्स है वेस्टिज का, जितना जो लोग अभी सब लोग घर बना रहे हैं। क्योंकि इसमें जो हाउस फंड मिलता है, इस हाउस फंड को लेके लोग बहुत जल्दी ही ड्रीम हाउस बनाने के लिए मतलब क्या होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। और बाकी लाइफस्टाइल तो बहुत ही जो साथ है, जो देखा हम लोगों ने फिल्म स्टार का। मैम आपका ये जो आपने बताया वही मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए आसिफ भाई एंड शबनम भाभी का पिक्चर्स जो मिलियनेयर्स वर्ल्ड वाइड की प्लेटफॉर्म में रिकॉग्निशन, फॉरेन ट्रेवल्स। अभी ये जो फोटो आप हम दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ का है? ये तो एक जो आप लोगों को ये तो जर्मनी का है, जहाँ पीता, अनानास ये सब दिख रहा है। और एक जो है आप लोग का टाइटैनिक का जो पोज दिया पिक्चर है वो है मलेशिया में क्रूज। हाँ, क्रूज में सब लोग जब हम गए थे, ये बहुत बड़ा एक ट्रिप था, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हम एक साथ में। और जो हम दोनों पूरा पोज में है वो जर्मनी का है एक। अच्छा। और बाकी तो हम लोगों का जो गुरु, हम लोग का गॉडफादर और रेस्पेक्टेबल बाली सार के साथ हसीपुर जी है। सो ये और ये जो यहाँ पे आपने अपना ड्रीम का भी है, ये आपका ड्रीम होम एग्जैक्टली यहाँ पे। एग्जैक्टली और यहाँ का है कुछ हम लोगों का। पिक्चर्स, दिस इज योर ड्राइंग रूम। यस यस
एग्जैक्टली ये जो हम लोगों ने वेस्टिज से घर लिया है, ये किचन है हम लोगों का, और ड्राइंग रूम का तो और बहुत सजाना है। ये बेडरूम का जो हम लोगों ने पिक्चर कलेक्ट की थी सेम टू सेम इस तरह से, बहुत दिनों से हमने एल्बम में हम लोग का ड्रीम जो एक ड्रीम का जो होता है, जो हम लोग का बोर्ड, इसमें हमने लगा के रखा था। तो इधर से वो सब कलेक्ट करके अभी सेम टू सेम बनाने के लिए कोशिश किया। और क्योंकि मैंने जब लास्ट विजिट किया था गुवाहाटी में, आप बोल रहे थे कि आप जल्दी शिफ्ट करने वाले हैं नए घर पे। तो दिस इज द होम, सो गुड टू सी। ये सारे जो पिक्चर्स फ्रेंड्स आप लोगों को हमने दिखाया, दैट इज आसिफुर भाई एंड शबनम भाभी का जो ड्रीम है, वो ड्रीम धीरे धीरे इन लोगों ने पूरा किया। फॉरेन ट्रिप्स किया। 2010 जून में जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, वो बिजनेस को करते हुए 2020 में आके आप देखिए अपना घर, अपना ड्रीम होम, 18 फॉरेन ट्रिप। मतलब जो लाइफस्टाइल एक बंदे को चाहिए, जो एक नौकरी से नहीं हो सकता, शायद कोई बिग बिजनेस बड़ा इन्वेस्टमेंट करके शायद हो सकता था, बट यहाँ पे कोई बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए नेटवर्क मार्केटिंग से भी ऐसा लाइफस्टाइल मिल सकता है। दैट इज ए ट्रू एग्जाम्पल। यहाँ पे डॉक्टर आसिफुर रहमान एंड शबनम जी इस ईयर। तो मैं फिर आसिफ भाई से के पास जाएंगे क्वेश्चन करते हुए कि आसिफुर भाई, आपको क्या सैक्रिफाइस, आपकी जो अचीवमेंट, एक मिनट। यस सर, जो मैंने दिखाया स्क्रीन पे, बेसिकली आपका ड्रीम होम, जो घर आपने बनाया, जो आप मेरे को बोल रहे थे कि रॉक मैं अपने घर पे शिफ्ट होने वाला हूँ, एंड आपका घर का कुछ पिक्चर्स आपने ये हम दर्शकों को भी दिखाया, जो ऑडियंस आज सुन रहे देख रहे हैं उनको दिखाया। आसिफ भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सैक्रिफाइस यू हैव टू, आपको ये गोल या ये अचीव करने के लिए आपका जो ड्रीम्स है, जरूर कुछ ना कुछ आपको सैक्रिफाइस करना तो पड़ा। व्हाट आर दोस सैक्रिफाइस? क्या सैक्रिफाइस आपने किया लाइफ में? सैक्रिफाइस किया एक्चुअली माय 3 साल मैं घर से बिल्कुल बाहर था। अच्छा। लाइफ में 3 साल मैं पूरा मूवमेंट में था। तो ऐसा परिस्थिति हो गया तो मैं एकदम बाहरी हो गया था। अच्छा। और क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था ना, मैं क्योंकि अचीव करने के लिए, मैं खुद अचीव नहीं, मैं किस के लिए कर रहा हूं, एक्चुअली मैं टीम के लिए कर रहा था। तो इसे के लिए टाइम दिया था मैंने। तो मेरा टाइम जो था, मेरा कोई फंक्शन हो, मेरा कोई घर में बर्थडे हो, सब कुछ मैंने पोस्टपोन कर दिया था। जब 2-3 साल में ये सब नहीं अटेंड करूंगा, क्योंकि मैं अगर सक्सेस होना चाहता हूं, मैं दूसरों को सक्सेस करना पड़ेगा मुझे। तो मैं उनके लिए, अब भी मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं। तो आज मैं जहां मैं आज भी मैं 4 चीज हमेशा मैं करता हूं। 4 चीज, एक है लीज बिल्डिंग। मैं हमेशा लीज बिल्डिंग, हर रोज मैं किसी को मिलता हूं और 2 नाम मैं डालता हूं वहां में। अभी भी मैं वो एज ए DUCD मैं अभी भी करता हूं। 2 नाम मैं डालता हूं, लीज बिल्डिंग, कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करना और इनवाइट करना। उसके बाद प्लान शो, रेगुलर प्लान शो। मैं 2 प्लान शो करता ही हूं हमेशा। मैं आज भी कर रहा हूं, 2 प्लान शो मुझे रह गई। एंड फॉलो अप उन लोगों को। तो ये 4 काम मैं हमेशा कर रहा हूं और मैं सबको सिखा रहा हूं। ये 4 काम करने से 1 साल में या 2 साल में आपका ड्रीम फुलफिल होता है। ओके, ग्रेट। तो सर, ये बहुत बढ़िया चीज आपने बताया कि DUCD होने के बावजूद भी बहुत लोग हम लोगों को पूछते हैं कि सर आपने तो DUCD कर लिया, आप क्यों इतना काम करते हो, आप तो काम करने का जरूरत नहीं है। देखिए, बेसिकली दिस इज नॉट द वर्क, दिस इज द, एक जुनून बन जाता है। जो आप लीडर तभी हो जो आप करके दिखाते हो। हेल्पिंग अदर पीपल, आप जो करके दिखाते हो। सिर्फ बोलने से लीडर नहीं हो जाता, आप करके दिखाने से।
जैसे कि हम बोलते हैं कि आप लिस्ट बनाओ, जैसे ना आसिफुल Yes. भाई ने कहा कि वो क्या करते हैं, चार जो काम, एक है कि उनका लिस्ट वो बनाता है, तय है, लोगों से बात करता है और हर दिन 2 न्यू नेम, 2 नाम, प्रोस्पेक्ट का नाम वो लिखता है, हर दिन में 2 प्रेजेंटेशन वो बिजनेस के लिए करता ही है, और फॉलो अप वो करता ही है। देखिए ये 4 बेसिक वर्क, देयर आर 4 बेसिक वर्क वन हैज टू डू इन दिस बिजनेस। आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको जिंदगी भर ये काम करना जरूरी है। पहले आपको थोड़ा स्ट्रेस आएगा क्योंकि आपका स्किल कम होगा, बट धीरे धीरे आपका स्किल डेवलप होता जाएगा और आप नेचुरली कर पाओगे। अभी आसिफुर भाई आपको कोई तकलीफ लगता है कि 2 लोगों से बात करना, 2 प्रेजेंटेशन देना? शायद वो पहला दिन में लगता होगा, आज तो वो नहीं लगता है, लोग आसानी से आपको सक्सेस को देखते हुए अभी जुट जाता है। हाँ, तो लेकिन ये देखिए सर, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, ये नहीं होता है जो मैं और आज भी दिखाता हूं। हेलो आसिफ भाई, आपका वीडियो पॉज हो गया है, आपका वीडियो पॉज हो गया है। वीडियो नहीं, आपका आवाज आ रहा है बट आपका वीडियो हम देख नहीं पा रहे हैं। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। हाँ अभी ठीक है। ओके हाँ ओके। तो मैंने पहले जो स्टार्टिंग में प्लान दिखाया था और आज के डिफरेंस में क्या है, पहले मैं बाइक लेके या पैदल जाके मैं दिखाता था, तब भी आदमी यस या नो करते हैं। अब मैं मर्सिडीज लेके जाता हूं, अब भी आदमी यस बोलते हैं और नो बोलते हैं। हाँ डिफरेंस क्या है, ये मैं मर्सिडीज लेके भी गया तब भी मुझे नो किया, जो मैंने बाइक लेके भी गया तब भी नो करते हैं। तो आदमी तो बोलेगा ही। तो हमको ढूंढना है वो पर्सन जो मुझे चाहिए, एब्सोल्युटली उसको ढूंढना है। तो मेरा काम है ढूंढना, और बाकी जो करना है वो ऊपर वाला दे देते हैं। तो दुनिया में मुझे हर आदमी नहीं चाहिए, मुझे 20 आदमी चाहिए जो लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, बस उसको मैं सक्सेस करवाता हूं मतलब। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भैया। और एक मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये जो आपको व्हाट आर द बेस्ट पार्ट ऑफ वेस्टीज? आपने दूसरे एक दुनिया की मशहूर कंपनी के साथ काम किया है और फिर आप एक इंडियन कंपनी के साथ काम किया है। जब वेस्टीज सिर्फ इंडिया में ही था, आज तो वो दुनिया में अपना बिजनेस को ग्रो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जा रहा है। व्हाट आर द बेस्ट पार्ट आपको लगता है कि वेस्टीज में व्हाट आर द बेस्ट पार्ट? बेस्ट पार्ट मतलब क्या है, प्रोडक्ट का एक ही, सबका कंपनी का एक ही सिस्टम है। डायरेक्ट सेलिंग का मैं बोल रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट पार्ट यहाँ में है प्रोडक्ट का रेंज। यहाँ का जो प्रोडक्ट का रेंज है जो हर आदमी खरीद सकता है, इसलिए आज नंबर 1 कंपनी इन इंडिया में है। वर्ल्ड में 30 पोजीशन में हम लोग आया है। तो यहाँ में है प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो हर आदमी यहाँ में प्रोडक्ट को खरीदते पाते हैं और उनका जो क्वालिटी है वो भी बेस्ट क्वालिटी में गिना जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, जब प्रोडक्ट के लिए और उसका प्राइस के लिए आज इतना सक्सेस हो रहा है। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एकोमोडेशन प्लान जो तो आप माइनस बोलना कभी भी नहीं होता है। तो आप बोलना चाह रहा है कि द बेस्ट पार्ट है वेस्टीज में जो द एक्यूमुलेटिव प्लान और जो प्रोडक्ट्स का क्वालिटी है, प्रोडक्ट, हाँ, क्वालिटी एंड रेंज, प्राइस रेंज है, क्वालिटी एंड प्राइस रेंज है। प्राइस, यस। ओके आसिफुर भाई, मैंने एक चीज मिस जो कर लिया है, दैट इज योर कार, मर्सिडीज का कार का फोटोग्राफ्स आपने भेजा था, बट वो मैं डाउनलोड नहीं कर पाया इसमें। आपने जब पहला जो मर्सिडीज आपने खरीदा है, तो आपको कैसा फीलिंग हुआ एक स्कूटर से मर्सिडीज? वो फीलिंग्स कैसा था? स्कूटर से मर्सिडीज मैं नहीं खरीदा। पहले मैं और एक गाड़ी मेरा था, महिंद्रा वेरितो का गाड़ी था। तो वहां से मैं मर्सिडीज में आया। अच्छा।
तो माय लाइफ में मेरा वेस्टेज में 3 कार मैंने लिया है, असिप किया है। एक है फर्स्ट महिंद्रा वेरिटो, उसका बाद मर्सिडीज बेंज, और अभी मेरा पास है और एक गाड़ी है, वो है जीप कॉम्पास है 25 लाख का। तो ये जो मर्सिडीज मैंने लिया, तो मर्सिडीज मुझे मतलब क्या है, गाड़ी लेते हैं लेकिन मर्सिडीज का जो क्वालिटी है वो अलग होता है। जो मैं रास्ते में जाता हूँ तो आदमी लोग जो देते हैं मर्सिडीज जा रहा है, तो वो फीलिंग्स अलग होता है। मतलब जो देख में जो बच्चा लोग है वो लोग मर्सिडीज जो है वो फीलिंग जो होता है जबरदस्त होता है। तो गाड़ी तो बहुत है, लेकिन वो ब्रांड नेम जो है मर्सिडीज का, ऑडी का, वो अलग होता है एक्चुअली। वो अलग होता है, तो इसीलिए वो अलग होता है। हाँ, मैं अभी आपके साथ बात करते करते हमने वो मर्सिडीज का पिक्चर्स मैंने निकाल लिया है, एंड आई वांट टू शो इट टू द ऑडियंस कि आपको, आप देखिए, जो बंदा सब कुछ छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था 2003 में, और फिर 2010 में आके वेस्टेज में स्टार्ट जीरो से स्टार्ट किया था। सर, आपने ये मर्सिडीज कब खरीदा है? मैं 2017, यानी कि ये बिजनेस को स्टार्ट करने के 7 डेज के अंदर, 7 इयर्स के अंदर, 7 इयर्स उन्होंने 3 गाड़ी उन्होंने खरीदा अभी तक, उसमें से एक मर्सिडीज बेंज है। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ बिजनेस वेयर यू कैन, आपका जो हम ड्रीम बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, सारे चीज आपको मिल सकता है अगर आप इस बिजनेस को आप लगे रहे तो। और इसके साथ आपका जो लगन है, जो लव है, जो पैशन है, सब कुछ आप डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप अगर इसमें आ जाए तो ये मुमकिन है, जो आसिफ भाई ने करके दिखाया है। सो फ्रेंड्स, मैंने यही चीज आपको बता रहे थे कि आसिफ भाई हर कोई जानना चाहता है कि वेस्टीज में बहुत पैसा कमाते हैं लोग। सो मेरा भी एक क्वेश्चन है, आपका हाईएस्ट चेक कितना है? और आज तक अगर ये 10 साल में हम कैलकुलेट करें तो आप कितना करोड़ आपने कमाया है? मान लीजिए अगर अभी मैं 10 लाख प्लस पर महीना। ओके, 10 साल की मानो भाभी जी से सलाह करके बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वो नहीं देखते, मेरा काम है प्लान दिखाना। आपका काम है प्लान दिखाना, फाइनेंस वो देखते हैं। ओके, वो देखते हैं। मैं बोला फाइनेंस देख लो, मैं ये करता हूँ। मतलब क्या है, तो करीब तो आसिफुर भाई, आप 10 लाख के ऊपर हर महीना आप कमा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10 साल में तो आपका कम से कम अब तक 7-8 करोड़ तो आप कमा ही लिए होंगे। यस 7-8 करोड़ से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही शायद आप यू हैव ऑलरेडी अर्न फ्रॉम दिस बिजनेस। सो ये ऐसा एक बिजनेस है, सिर्फ दोस्तों आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं देता। যে কথাগুলো আমি বলছিলাম, ভাবি আসার পর যেহেতু আসিফ ভাই বাংলা একটু বলতে পারেন, তাই আসিফ ভাইয়ের সঙ্গে আমি বাংলাতে কথা বলছিলাম, বাট ভাবিকে আমি জানি না ভাবি বলতে পারতেন কিনা, তাই আর ভাবিকে আমি মানে পেন দিইনি বাংলাতে কথা বলার। বাট আমি এইটুকুনি ভাবির কথা শুনে বলতে পারলাম যে প্রথম দিকে ভাবি একটা গভর্নমেন্ট জব, ভাবি একটা কলেজে জব করতেন অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এবং উনি বলছিলেন যে আমার তো একটু অবাকই লাগছিল প্রথম দিকে, উনি খুব অশান্তিতেই ছিলেন। কেন ছিলেন? কারণ উনি বিয়ে করেছেন একজন ডক্টরকে, একজন ডক্টর দেখেই ওনাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বাট ডক্টরই করছে না, বাট অন্য বিজনেসের মধ্যে চলে গেছে। সো ডেফিনেটলি ফ্যামিলিতে একটু রিফট বা ওনার একটু প্রথম দিকে নেগেটিভিটি ছিল এই বিজনেস সম্বন্ধে। বাট উনিও জব করতেন সে সময় একটা কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে, কিন্তু সেখানেও উনি হি ওয়াজ নট হ্যাপি। বাট উনি যখন দেখলেন, যখন আসিফুর ভাই ক্রাউন ডিরেক্টর হলেন, এবং যখন দেখলেন স্টেজে ওনাকে কিভাবে রিকগনিশন দেওয়া হচ্ছে, গৌতম বালি স্যার কিভাবে রেসপেক্ট দিচ্ছে, উনার কাছে
তখন এই বিজনেসটাকে উনি সিরিয়াসলি নিতে শুরু করেছেন যে হ্যাঁ আমি তো এরকমই একটা কিছু চাইছিলাম যেখানে এরকম রেসপেক্ট পাওয়া যাবে, যেরকম এখানে এরকম ড্রিম ফুলফিল করা যাবে। এবং তারপর উনিও ওনার জব ছেড়ে দিয়ে হাজব্যান্ড ওয়াইফ ফুললি, উনি একটা দারুণ কথা বলেছেন, যদি হাজব্যান্ড এই বিজনেসটা করে তাহলে বিজনেসটা 50% করা হয়, যদি ওয়াইফ বিজনেসটা করে তাহলে ওয়াইফ 50% করা হয়, যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে একসাথে বিজনেসটা করা যায় তাহলে এটা হাজব্যান্ড ওয়াইফের 100% কাজ করা হয়। এবং 2010-এ যে বিজনেসটা ওনারা শুরু করেছিলেন, 3 বছর আসিফুর ভাই কোনো ধরনের ফ্যামিলি ফাংশন, আমি যখন জিজ্ঞেস করেছি কি কি স্যাক্রিফাইস করেছে, উনি বলছেন যে আমি ফ্যামিলি লাইফ স্যাক্রিফাইস করেছি। আমি 3 বছর বাইরের লোকের মতন ছিলাম এবং ট্যুর করেছি, ডাউনলাইনের জন্য মিটিং করেছি এবং কন্টিনিউয়াস কাজ করে গেছি। ফার্স্ট 3 ইয়ার্স আমি কোনো দিকে তাকাইনি, শুধু আমার বিজনেস বিল্ড করেছি। এবং এই বিজনেস বিল্ড করতে করতে আজকের দিনে ওনাদের কাছে ওনাদের ড্রিম হোম, যেটা আমি আপনাদের দেখালাম, অলরেডি ভেস্টিজ থেকে 3টে গাড়ি, তার মধ্যে একটা মার্সিডিজ বেঞ্চ ড্রিম কার অ্যাচিভ করেছেন, 18টা ফরেন ট্রিপ করেছেন এবং কিছু না হলেও প্রায় 8 কোটি টাকার মতন অলরেডি আর্ন করেছেন, প্রতি মাসে 10 লাখ প্লাস रोजगार করছেন। डॉक्टर आसिफुर रहमान, बिग सैल्यूट टू यू सर, क्योंकि जब आपने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, আসামে যখন আপনি শুরু করেছিলেন তখন সেখানে কোনো অফিস ছিল না। তো আজকের দিনে কোথাও একটা বিজনেস যখন আমরা করতে যাই নতুন, যখন অফিস থাকে না, লোকে বলে স্যার অফিস নেই বিজনেস কি করে করব। আসলে যারা হার্ড ওয়ার্ক করে, আজকে এটা একটা অপরচুনিটি, যেখানে অফিস নেই সেখানে খুব কম লোক আসে বিজনেস করতে, তার মানে আপনার জন্য মার্কেটটা ফাঁকা ছিল। এবং আপনি যখন এই বিজনেসটাকে গ্রো করেছেন, হার্ড ওয়ার্ক করেছেন, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রোডাক্ট পৌঁছে দিয়েছেন, 6 মাস 1 বছরে বিজনেসটা কষ্ট করে দাঁড় করিয়েছেন, কোম্পানি তারপর যখন অফিস করেছে তখন সবচেয়ে বেশি বেনিফিট কে নিয়েছে? তখন আপনি নিয়েছেন। তখন যারা অফিসের জন্য বসেছিল তারা বিজনেসটা শুরু করলো, কিন্তু শুরু করলো কখন? তারা আপনার নিচে বিজনেসটা স্টার্ট করলো, আপনার নেটওয়ার্কে তারা জয়েন করলো, এন্ড ইউ হ্যাভ ফ্লারিশড ইউর বিজনেস বিগ ওয়ে। आसिफुर भाई, यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल। मैं तो आपको बड़े भाई की तरह देखता हूं और आपका सक्सेस मुझे हर वक्त मोटिवेट करता है। और गुवाहाटी में जो सक्सेस आप लोगों ने किया है, क्योंकि मिस्टर बाली भी जब मेरे से बात कर रहे थे 2013 में सितंबर में दुबई से आके, जब मेरे को वो दिखा रहा था सक्सेस बुक, तो उसमें बता रहा था कि आपके नाम भी, कि गुवाहाटी से हमारा इतने ये लोग लाखों के ऊपर कमाते हैं। तो आप भी एक रीजन है मेरा मोटिवेशन का, कि आपकी इनकम सुनते हुए मैंने इस बिजनेस में आया, और आप लोगों के बहुत सारे लोगों की जो आमदनी है जो वेस्टिज करके दिखाया। तब नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे था, बट बहुत अच्छे कंपनीज भी थे, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स भी थे, बट प्लान में इतना दम नहीं था जो जितना दम वेस्टिज में था। तो इसीलिए सारे डिफरेंट कंपनी के लीडर्स वेस्टिज में आया और सक्सेसफुल हुए। और वो सक्सेस को देखते हुए, ওই সফলতাগুলো দেখে আজকে অনেক লিডাররা পরবর্তী সময়ে এসছি, যেমন আমি 2013 থেকে কাজটা শুরু করেছি, 2013 ডিসেম্বর থেকে, সেরকমই তারপরেও আমার পরেও অনেক লিডাররা আসছে, এখনো লিডাররা আসছে वेस्टिज এবং वेस्टिज ग्रो করে যাচ্ছে। सो आसिफ भाई, थैंक यू सो मच। आपका जो कहानी हमने सुना, जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस आपने किया है, एज ए आपका हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल आपने कैसे खो दिया, एक्सट्रीमिस्ट से आप बहुत खुशकिस्मत बंदा है कि एक्सट्रीमिस्ट उठा के लेके गया, फिर भी आप यू आर स्टिल अलाइव, और आप 100 साल जियो। ये हम लोगों का हम लोग ये दुआ करते हैं आपसे। ये है। और मैं एक बात बता सकता हूँ आपको, जो इस बिजनेस में मैं जो सक्सेस आया मेरा लाइफ में, 2 पर्सन है एक्चुअली मुझे सक्सेस करने में जो मदद किया है, none other than Mr. दीपल पटरोवाला एंड नीलेश पटरोवाला जी। एक्चुअली माय मेंटर है वो। लाइफ में मेरा जो अप डाउन गया तो उन लोगों ने संभाला मुझे, और आज इस पोजीशन में हूँ उनके बदौलत से। क्योंकि वो अगर मुझे गाइड नहीं करता तो बीच में भटक जाता, क्योंकि गलती तो हमेशा होता है, आदमी हो तो वो गलती को सुधारना, मतलब कोई ना कोई तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं थैंक्स देता हूँ मैनेजमेंट, मिस्टर गौतम बाली, दीपक सूद, कन्वरवीर सिंह, जो मैनेजमेंट में बना के हम लोग को भेजा है इस बिजनेस में इतना सक्सेस होने के लिए। एंड माय टीम ऑल्सो थैंक्स, मेरा जितना टीम है, जो वो लोग आज, जो मैं अगर अकेला नहीं हूँ, जो मैं 10 लाख, मेरा टीम में भी 10-12 लाख रुपया इनकम करने वाला आदमी भी है, जैसा ग्रेट लीडर है। तो
और मेरा मेंटर थैंक्स देता हूँ दीपल पटरावाला एंड नीलज जी, जो मुझे आज वो एजुकेशन सिस्टम MWW का जो मैं फॉलो करता हूँ हमेशा। जिस दिन से मैं MWW के अंदर में आया और उसको फॉलो रेगुलर हम लोग कर रहे हैं, तो इस सक्सेस का जर्नी का वो 2% मेरे लाइफ में बहुत महत्व रखता है। डेफिनेटली दे आर द वन हु हैज क्रिएटेड, इंडिया में सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम इन्होंने लाया और सिर्फ उनके एजुकेशन सिस्टम और डेवलप किया सिस्टम से हम लोग सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बिजनेस डेवलप कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन आपको, लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे आपसे, क्योंकि मेरे पास बहुत SMS आ रहा है कि सर ये चीज पूछो, वो चीज पूछो, सारे चीज तो पूछ नहीं सकते। बेसिकली बांग्लादेश में हम लोगों ने लॉन्च किया और लास्ट मंथ हम लोगों ने बहुत एक्सेलेंट बिजनेस किया। करीब करीब हम लोगों ने 2 करोड़ 17 लाख का सेल किया, जो ऑल टाइम हाई है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश में हम लोगों ने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, जहां पे प्रोटीन पाउडर्स है, इनविगो प्रोटीन पाउडर्स है, फाइबर है, वेस्लिम शेक है। सो एज ए डॉक्टर क्या आप रिकमेंड करते हो इस सब प्रोडक्ट्स, और इसका अगर एक दो खूबी आप बता दो। मैं आपको प्रोटीन का बारे में बोल रहा हूँ। प्रोटीन इज द मोस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट इन आवर बॉडी। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्यों चाहिए हमको, जो हम लोग का जो बॉडी है वो प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन में 20 नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड, मतलब हम लोग का बॉडी में 20 नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड सही है पर डे। और हम जो खाना खाते हैं, फूड हैबिट है, तो 20 अमीनो एसिड हमारा का बॉडी में नहीं आता है। और 20 अमीनो एसिड में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड रहते हैं। 9 एसेंशियल, जैसे आप मान लो 26 अल्फाबेट्स है, वहां में 5 भावल है। अगर भावल को आप हटा देंगे हम लोग का वर्ड नहीं बने। तो इसीलिए हम लोग का बाद में बॉडी में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, जैसे 5 भावल है। तो अगर 9 एसेंशियल अमीनो का कम बेसी ये हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम लोग का डिजीज स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए तो प्रोटीन पाउडर में 20 नंबर्स, मतलब 26 अल्फाबेट जैसे होता है, तो 20 नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन पाउडर में है। तो अगर हम लोग 1 चम्मच करके 2 बार हम लोग रेगुलर लेते हैं, तो हम लोग का स्किन से लेके, ऑर्गन से लेके, बाल से लेके सब कुछ हम लोगों का क्या होता है एक्टिव होता है। बहुत आदमी को होता है चूल हेयर फॉल होता है, तो इसलिए होता है जो प्रोटीन डिफिशियंसी के वजह से होता है। नाखून का प्रॉब्लम होता है, पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब डिफरेंस होता है ये। और फाइबर हमको, ये प्रोटीन हो गया, फाइबर भी हम लोगों का बॉडी में बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं आजकल दिन में फाइबर ज्यादा हम लोग का पेट में नहीं जाता है, इसलिए हम लोगों का बहुत पेट का प्रॉब्लम होता है। कोलन कैंसर जो होता है फाइबर के वजह से, फाइबर अगर हम लोग नहीं लेते तो कोलन कैंसर स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग 1 चम्मच करके गुनगुना पानी में हम लोग ये खाएंगे, तो आपका क्या होता है फाइबर, तो हम लोग का फूड पाइप जो है वो क्लियर कर देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है ज्यादा से ज्यादा। ओके, पेट में जितना गंदा है वो फाइबर से निकलता है। तो फाइबर रेगुलर 1 चम्मच रेगुलर लेना है, प्रोटीन पाउडर 1 चम्मच करके 2 बार, और फाइबर 1 स्पून पर डेली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूँ। और वहां में क्या है और प्रोडक्ट, वहां पे वेस्लिम शेक है और इनविगो, बच्चे लोगों का जो प्रोटीन पाउडर है चॉकलेट फ्लेवर वो है, बच्चे के अलग है। हाँ, प्रोटीन पाउडर, जो प्रोटीन पाउडर बड़ा के लिए वो है और बच्चे के लिए वही है, 20 अमीनो एसिड वहां में भी है, लेकिन उसके क्या होता है चॉकलेटी फ्लेवर है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए चॉकलेटी फ्लेवर वो खाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो बड़ा वाला है वो लोग खा नहीं सकता है, क्योंकि उसका सेंट थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ का जो चॉकलेट फ्लेवर है वो इजीली पी सकते हैं, तो हम लोग वो रिकमेंड कर देते हैं। और वेस्लिम से क्या होता है, हम लोगों का जो फैट पर्सन है उसको हम दे सकते हैं, ओवरवेट है उसको दे सकते हैं। तो वो जो खाना खाते हैं, तो एक टाइम हम लोग अगर शेक खा के और सलाद खा के हम एक टाइम को ये करेंगे, तो हम लोगों का वेट लॉस ज्यादा अच्छा होता है। ओके, थैंक यू
आसिफुर भाई, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते ये सारे ट्रेनिंग्स कंपनी की तरफ से हम लोग को मिल रहा है, बट एज ए डॉक्टर आपके मुंह से लोग सुनना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बांग्लादेश में ये जो है ये सुना दिया। তো আপনারা সবাই শুনতে পেয়েছেন যে ডক্টর আসিফুর রহমানও আমাদের রেকমেন্ড করেছেন কেন আমাদের খাওয়া দরকার, কেন আমাদের প্রোটিন পাউডার খাওয়া দরকার। তো সুতরাং আমরা যদি প্রপার নলেজ নিয়ে এই প্রোডাক্টস গুলোকে লোককে রেকমেন্ড করি তবেই এটা আমাদের জন্য ভালো হবে। थैंक यू आसिफुर भाई, थैंक यू सो मच, आपने जो इतना कीमती वक्त टाइम में दिया, थैंक यू। भाभी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने भी टाइम निकाल के आज 1 घंटा टाइम हमको दिया है। और जो पूरा ये जो फेसबुक लाइव में जितने सारे ऑडियंस हम लोगों को आपको देखा है, डेफिनेटली दे विल बी मोटिवेटेड कि एक डॉक्टर होने के बाद भी, एक कॉलेज में नौकरी करने के बाद भी अगर भाभी ये बिजनेस को कर सकती है और आप ये बिजनेस को कर सकते हैं और एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं और इतना हाईली सक्सेसफुल लेवल पे जा सकते हैं, तो कोई भी बंदा इस बिजनेस को लेके आगे जा सकते हैं अगर वो ठान ले कि उसको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাইলাম যে কলেজের একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়ে ভাবি, শবনম ভাবি যদি বিজনেস করতে পারে, ডক্টর আসিফুর রহমান যদি নিজের জায়গা ছেড়ে একটা হসপিটাল ছিল সেটাকে বন্ধ করে দিয়েও এই বিজনেসটাকে ফুল টাইম নিয়ে যদি আজকে এই সফলতার জায়গায় যেতে পারে, তাহলে কোন লোক আছে এই বিজনেসটাকে না বলতে পারে? আপনি জাস্ট ভেবে দেখুন। সো আমরা একটা দারুণ ওয়ান্ডারফুল প্ল্যাটফর্মে আছি। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা আসিফুর রহমান ভাই বললেন যে ভেস্টিজের বেস্ট পার্ট হচ্ছে ভেস্টিজের ম্যানেজমেন্ট, ভেস্টিজের বেস্ট পার্ট হচ্ছে ভেস্টিজের প্ল্যান, ভেস্টিজের বেস্ট পার্ট হচ্ছে ভেস্টিজের প্রোডাক্ট। তো সুতরাং ভেস্টিজের যে সিস্টেম, ভেস্টিজের যে পুরো সফল করার, একটা লোককে সফল করার যে ইউনিক পদ্ধতি, সেগুলো সবগুলো মিলেই কিন্তু আমরা সফলতার জায়গায় যাব। এবং সুতরাং আমরা ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবিয়া, ওমান, যেখান থেকেই আমরা এই বিজনেসটা করছি, যত বাঙালিরা এই প্রেজেন্টেশনটা শুনছেন, যারা বাংলা বুঝতে পারছেন, তাদেরকে আমি একটা কথাই বলছি, এটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা লক্ষ লক্ষ লোকের লাইফ ভবিষ্যতে চেঞ্জ করবে। যেরকম ডক্টর আসিফুর রহমানের হয়েছে, যেরকম আমার হয়েছে, এরকম লক্ষ লক্ষ লোকের চেঞ্জ হয়েছে। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू आसिफुर भाई, थैंक यू सो मच। आपने जो टाइम दिया है, आपकी बातों से शायद बहुत सारे लोगों का, जो लोग तहे दिल से इस बिजनेस को लिया है, जो लोग सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, उनके जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। और बहुत एक अच्छा मतलब मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल सेशन रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, विश यू वेल। ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू।